यार इतनी कम गैदरिंग में थोड़ी बुलाएंगे सनी भैया को। Especially taken out time, guys. He's being very busy. Yeah. And on personal request, he came in. So let's wait for a few other friends to join. Quickly message in your group so that your friends can join in and we'll call Sunny B up together. We are all good.
Thank you for waiting, everybody. Let's start. So, I guess all of you know who is coming in today's session. A lot of love coming from Sunny Bhaiya and Team B Seattle team. How's it? Okay, guys, we're just waiting for Sunny Bhaiya to join up with us. Till then, how are you guys doing? How's your day? So till then, guys, you can also put in the comment box what all questions you have in particular for Sunny Bhaiya, so that we can even count them and ask him accordingly. Okay, few questions coming in now. Okay, we see a lot of Sunny Bhaiya fans going crazy. Okay, Sunny Bhaiya's entrepreneurship journey. One question. Uh, okay, guys. Very lately, this is a news which I think most of you must have heard because it's one of the most hot topics in Delhi University. Because it Your Shell, which was started by Mr. Sunny Garg and team, has been acquired by Stanza Living, which is India's largest accommodation provider at a multi-billion-dollar valuation. This is the biggest startup that has ever emerged out of Delhi University. And very lately has been busy with all the press releases, all with interviews, and he's taken out time especially for all of us so that we can engage, learn, and get inspired from his journey. He's someone who's very close to me, who mentored me in my initial days, got me started, polished my ideas, polished me as a person, and everything that I am today is because of him. Right. So basically, if I share a little bit of my journey with Bhaiya, I have been a tenant of Your Shell. So I know how much of love and hard work you put in while making things work in Your Shell, and how lovable a startup it was. It was something that once you are in Delhi, and if you are a Delhi University student, not campus student, Your Shell is your home, and that's more of an emotion. Sunny Garg is Sunny Bhaiya for everybody here, and no, we settle and house it. I guess both of it started because we drove inspiration from Sunny Bhaiya. He's one person who is an inspiration for everybody who starts a startup in Delhi University. And we are really, really lucky that he has taken out time for all of us here. And he'll be live in a while with all of us. I guess we can. We'll very quickly call him and get started off. Hello. Hi, Bhaiya. We'll be just starting off. Thank you for joining us. Hello. Hello. Hi, हाय Bhaiya. प्रज्ञा, हाय प्रज्ञा, हाय रजत. कैसे तुम लोग?
बढ़िया, आप बताओ। यार तुम लोगों ने इतने अर्जेंट नोटिस पे सेशन क्यों कराया? अगले वीक करा लेते यार। यार अभी आप मतलब we know it had been a tiring and a very very long weekend for all of you. You've been center of Yeah. light. So Yeah. इतना फोकस आपके ऊपर हम चाहते हैं, थोड़ा फोकस हमारे पास भी आए, हम भी सीखें आपसे। अरे यार वो तो आजकल तो इतना प्रेस रिलीज और उसमें लगा हुआ, बट ये है कि तुम लोग प्रज्ञा और मानस हम लोग के टेनेंट्स थे और तुम लोग डे वन ऑफ हाउस इट से हमारे साथ, तो इसलिए हाँ भूल भी दिया, वरना इस टाइम पे तो यार पीआर और सब में काफी कुछ चल रहा है। बताओ कैसी है टीम तुम्हारी? कितने लोगों ने ज्वाइन किया? तुम लोगों ने मुझे 1,500 लोगों का बोला था। 500 and joining. चलो 500 इज ऑल्सो गुड नंबर यार। मैंने कभी नहीं करा पाया कोई ऐसा इवेंट जिसमें 500 लोग ज्वाइन करे ऑनलाइन। थैंक्स टू Very कोरोना एंड थैंक्स टू योर टीम। Just a minute, भैया। सनी भैया आ जाओ। हाँ बताओ। So अभी till the time we brushing off start करने के लिए अभी बहुत हाइप क्रिएटेड है हर जगह। सनी भैया what is coming on Tuesday, what is सनी भैया doing? तो do you want to share some light क्या आ रहा है Tuesday को, क्या होना दोस्त चाहिए? जब तुम लोगों ने मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल करके बोला था कि हम लोग ये सेशन कराना चाहते हैं, मैंने पहली चीज यही बोली थी कि ट्यूसडे की हाइप तो मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पता, अभी तुम लोगों को कैसे बताऊं? Still like थोड़ा सा आई hint एम कि क्या होने वाला है। आई एम वेरी वेरी सॉरी यार। मतलब समझ लो, आई हैव सम इन्वेस्टर्स इन्वॉल्वड, आई हैव अदर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वड। उन लोगों ने ट्रैफिक मेरे को बोला कि अपने इंस्टाग्राम पे बुला ले, अपने पर्सनल उस अकाउंट पे बुला ले, पर आई एम अंडर अ स्ट्रिक्ट नॉन कॉन्फिडेंशियल कि अगला स्टार्टअप क्या है इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। हाँ, इट इज रिलेटेड टू यूथ, इट इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, इट इज रिलेटेड टू द रियल एस्टेट एंड इट इज कहते ना, अब ये मकसद नहीं है कि खुद पैसा कमाना है। खुद इतना हो गया है कि ठीक है यार, लाइफ में 10-20 साल आराम से निकल जाएंगे थ्रू द इंटरेस्ट ऑफ द मनी आई हैव अर्न्ड। अब द नेक्स्ट स्टार्टअप, द मोटिव इज टू हेल्प दोज पीपल हु हैव हेल्प्ड अस। सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि तुम लोगों ने हम लोगों की हेल्प करी थी, तो नो मैटर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आज मैंने तुम लोगों को मना नहीं किया। तो अब मेरा मोटिव लाइफ में यही रहेगा कि जितना भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कहते हैं ना, जो चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहे, चाहे वो एमबीए करना चाहे, चाहे वो जॉब्स लेना चाहे, चाहे वो कहते हैं इंटर्नशिप लेना चाहे, उससे रिलेटेड कुछ, प्लस फिर हम लोग का रियल एस्टेट में एक्सपर्टीज है तो रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ। हाँ, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो तुम्हें ट्यूसडे की वीडियो में मिलेगा। जितने भी लोग लाइव हैं, मुझे दिख नहीं रहे जूम पे, मुझे इतना टेक्नोलॉजी आती नहीं यार ऑनेस्टली। तुम सबको बोल दो कि मेरे इंस्टाग्राम पे चले जाएं, वहां पे ट्यूसडे को या तो सुबह या फिर शाम को मैं एक वीडियो रिलीज करूंगा, उसमें सब कुछ बता दूंगा। Okay. मेजरली उसमें कवर कर लूंगा, बाकी उसके बाद एक वीक बाद पूरा एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट आएगा कि क्या है। Perfect, क्योंकि perfect. मुझे भी नहीं पता था ट्यूसडे की इतनी हाइप हो जाएगी जब मैंने एक वीक पहले डाला था। All of us, I guess, have been following you on Instagram already. And मतलब इतनी एक्साइटमेंट थी हम लोग को कि कब आएगा, we were just waiting for Tuesday. यार इट्स बीन मोर देन अ ईयर, मतलब एक साल का गैप लेना पड़ा मुझे फॉर ऑल दिस, क्योंकि एकदम से मेंटल स्टेट भी कहते हैं ना, लोग कहते हैं डिप्रेशन। भाई मैंने अभी कहते हैं कमेंट पढ़ा था कहीं पर, अभी यूट्यूब लाइव जब मैं देख रहा था तुम लोग का, कि हाउ आई डील विद डिप्रेशन। डिप्रेशन सबको होता है दोस्त, बस उसको डील करना होता है। एक बार तुम क्लास 12 से ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद डिप्रेशन इज गोइंग टू बी कांस्टेंट इन योर लाइफ एंड तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उससे सिर्फ फाइट कर सकते हो अपना बेस्ट देके। जो भी करो उससे लर्निंग लो। मैंने जो मेजरली सीखा है पिछले 6 महीने में, वो सिर्फ वेब सीरीज देख देख के सीखा है। Guys. Okay, so अभी very lately Sunny भैया, whenever we Google Sunny, Google suggests Sunny Garg and yourself, Sunny Garg and Shefali Jain, and it's all over the news. When I was counting PR articles, I counted till 67. उसके बाद मेरी count खो गई. So I see any big name, Your Story, Z News, Hindustan Times, whatever. Economic Times, Everywhere you are is there you. Okay. So इस सब की हाइप तो सबको दिख रही है, सबको इतना ग्लूमी दिख रहा है, सक्सेस दिख रही है, दिल्ली में सबसे बड़ा स्टार्टअप, मल्टी-बिलियन डॉलर एग्जिट, इंडियाज बेस्ट स्टूडेंट हाउसिंग कंपनी। तो ये तो आपका ग्लूमी साइड हो गया। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ जब आपने सोचा कि मेरे को ये एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, मेरे को योरसेल करना है? वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम था आपका? यार देखो ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैं बचपन से ही वो बच्चा था जिसको करना ही बिजनेस था।
ऑल्दो क्लास 12th के बाद बिजनेस की डेफिनेशन चेंज हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, सॉल्विंग इट, मोनेटाइजिंग इट। बट बचपन से यही था कि बिजनेस ही करना है, बिलोंग्स टू अ बिजनेस फैमिली, आसपास वाले सब लोग बिजनेस ही करते हैं। एंड जब तुम नॉर्थ कैंपस में आओगे ना, तो तुम्हें दो तरह की चीजें दिखेंगी। एक होती है इंटर्नशिप, जिसमें तुम्हें लाइक करना होता है, शेयर करना होता है, कमेंट करना होता है, और तरह की चीजें करनी होती है। और दूसरी होती है पीजी की प्रॉब्लम। आई स्टार्टेड विद लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स। मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम ऑफ बेवकूफ.com, जो साइट टी शर्ट्स और ये सब बेचती है। उस जगह पे मैं कर तो लाइक कमेंट शेयर रहा था, पर उसके थ्रू में जितने लोगों से मिल रहा था और जितने लोगों से इंटरेक्ट करके पता चल रहा था कि हो क्या रहा है, जो उसके थ्रू नेटवर्क बना। लोगों को लगता है लाइक शेयर कमेंट और कैंपस एम्बेसडर वाली इंटर्नशिप फालतू है। यार मैं आज भी उस इंटर्नशिप के 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ कांस्टेंट टच में दोस्त हैं। ऑल तो उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं थी। सच बताऊं, जो मेरे को बेवकूफ.com का सर्टिफिकेट मिला था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसके एलओआर की भी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन उसके जो 15-20 दोस्त थे मिले थे वहां पर उस ग्रुप में, उनकी वैल्यू थी। उसके जो मेरे को हेड कर रहा था बंदा, उसकी वैल्यू थी। उसके बाद आई ज्वाइन वी आर हॉलीडेज आर स्टार्टअप। उसमें भी इसी तरह का काम था, कंटेंट और ट्रैवल एक्सपीरियंस बताने वाला। उसमें जो मेरी टीम लीड थी, आज वो फॉर्ब 30 अंडर 30 एंड वी आर कांस्टेंट इन टच। तो internships are not about certificates and LORs or stipend. It is about the network and the learning you leverage from it. उसके अलावा फिर जब तुम नॉर्थ कैंपस आओगे यार, उसमें एक ही चीज दिखेगी, तुम भी वही खोल के बैठ गए, पीजी हॉस्टल फ्लैट। तो इट वाज द मोस्ट ऑब्वियस थिंग, अगर तुम्हें डीयू आके एंटरप्रेन्योरशिप में आगे जाना है, तो तुम हॉस्टल फ्लैट इन सब का बिजनेस कर लो। तुम लोगों के टाइम तक तो योरसेल, स्टैंडर्ड लिविंग, इस तरह की कंपनीज हैं, पर हम लोगों के टाइम में तो यार बंसल निवास, कितना अरण्या पीजी, इस तरह के नाम थे जो बहुत फेमस नहीं थे। ऑल्दो इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, पर कितना कुछ ऐसा नहीं था। जैसे ओयो होटल्स में आ रहा था, उबर कैब्स में आ रहा था, स्विगी खाने में आ रहा था, लेकिन हॉस्टल मार्केट को कोई ऑर्गेनाइज ही नहीं करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि इंडिया का जितना भी यूथ है, उसको रियल एस्टेट में घुसना ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों। इसके बारे में मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा, ट्यूसडे को जो वीडियो आ रही है उसमें इसी के बारे में बात है। Nice, that's nice. So exactly आपने योरसेल किस एज में स्टार्ट करा था एंड How यार did you start off? योरसेल से पहले आर कॉन्सेप्ट वो सिमिलर टू हाउस इट एंड रीसेटल। तो मैं तो ये देखता हूँ कि 2 साल 3 साल बाद तुम मेरी जगह बैठे होंगे। आई स्टार्टेड हेल्ड यू व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर एंड, तो दैट वाज 2016। मैं आज 19 18 19 साल की उम्र में, मतलब आई वाज 18 और 19 व्हेन आई स्टार्टेड हेल्ड यू एंड योरसेल। तो यार इट इज नॉट अबाउट द आइडिया, और इट इज नॉट अबाउट, कहते ना कि क्या कर रहे हो, इट इज अबाउट द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट यू गिव योर टीम, the amount of efforts you give in your work, the amount of respect you give to your stakeholders, the team, the investors, the customers, the vendors. तुम लोग तो मेरे यहाँ जो रहे हुए, तुमने देखा होगा कि नो मैटर बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम हो, कितने भी बजे हो, सनी भैया वाज ऑलवेज रेडी। मैं नहीं कह रहा टीम योरसेल रेडी हो ना हो, अगर तुम मुझे बोलोगे रात के 4 बजे भी बीमार हो, तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। क्योंकि यार कितना बिफोर बिजनेस, बिफोर पैसा एंड वो सब, इफ यू आर डूइंग अ स्टार्टअप, इट इज धर्म। कितना अगर तुम धंधा करने चले हो तो वो धर्म है पहले, उसके बाद कमाने का जरिया है। अगर तुमने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो यू आर अकाउंटेबल ऑल्सो। अगर 500 लोग आज इस लाइव में आए हैं मुझे और तुम्हें देखने के लिए, तो तुम और हम अकाउंटेबल हैं इन लोगों को वैल्यू एडिशन ऐड करने के लिए। और अगर ये लोग तुम्हारे इंटर्न्स हैं, तो कहते ना तुम लोग रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हो इनके लिए। True. right? So very lately, Sunny Bhaiya. हाँ. So very lately, Sunny Bhaiya, your name got. एक मिनट। By that time, I would love to see some questions on the chat instead of, we know you both, you love us. We know there is Team Houseit and Team Resettle going on, but we would love to see questions for Sunny Bhaiya. Yeah. So very honestly, Sunny Bhaiya, very lately your name changed, Instagram name changed from Sunny Garg to Sunny Bhaiya. So and all over the internet, all over the social media, there has been Sunny Bhaiya, Sunny Bhaiya, Sunny Bhaiya. So we as students, your students have been calling you Sunny Bhaiya. Your shell mates used to call you Sunny Bhaiya. Why did you now change your name to Sunny Bhaiya? यार पता है, अभी तक ना आई वाज रनिंग अवे फ्रॉम इट। मतलब पूरी दुनिया बोलती थी कि मुझे सनी भैया, बट आई वाज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। मैं भी तो तुम लोगों से 1-2 साल ही बड़ा हूँ यार। मतलब एक तो भैया इज अ वेरी हैवी वर्ड, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू एवरीबडी। एंड योरसेल के टाइम पे ना आई वाज नॉट वेरी सीरियस इन लाइफ। मतलब ठीक है, मेरे को बिजनेस करना था,
बट मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ना कहीं डर लगने लगा था एक टाइम के बाद। जो ये 1 साल कोविड का गया, कंपनी तो मैंने नवंबर 15 लास्ट ईयर बेच दी थी, पर जो 1 साल निकला, इस 1 साल में मुझे रियलाइज हो गया कि विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल एसोसिएटेड विद अस, आई एम नथिंग। तो सबसे पहले मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भाई अगर तुम मुझे सही नहीं भैया बोलते हो तो मैं मानूंगा कि मैं तुम्हारा तुम्हारा सही में भैया हूँ, एंड आई विल टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी तक की सिर्फ 600 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो हॉस्टल में रहते थे, आज आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्लीट यूथ ऑफ द कंट्री टू चेंज हाउ दे थिंक, टू कहते ना टू डू वट एवर इज पॉसिबल इन माई हैंड। देखो यार 500 करोड़ तो कमाए नहीं है मैंने, पर इतने कमा लिए कि जो बंदा सही से चलेगा उसकी मदद जरूर करेंगे यार, चाहे वो रियल एस्टेट में करे चाहे वो नॉन रियल एस्टेट में करे। अब वो किस तरीके से मदद करेंगे वो तुम्हें ट्यूसडे और उसके आने वाले ट्यूसडे, या मतलब कहते हैं ना द नेक्स्ट मंथ, 1 मंथ, सनी भैया हाइप इज नॉट गोइंग टू गो एनी वे। तुम लोगों को बहुत जल्दी चांस मिल गया कि टू गेट योर इंटर्न्स इन टच विद मी, बट मेरा जो प्लान है अपना सारा पैसा वापस लगा देने का और फिर तुम लोगों से ही रेंट उधार मांगने का। we would love to help you in any way भैया। okay, so अभी भैया बहुत lately हम सब gloomy side देख रहे हैं of your success, of your multi-million dollar exit, but if you are comfortable in sharing, सक्सेस तो सबको दिखती है, बट ऑन द आइसबर्ग जो नीचे का प्रॉब्लम्स आपने अभी तक फेस की थी वो सबको नहीं पता। वी हैव बीन क्लोज टू यू, सो वी नो अ लिटिल अबाउट देयरसेल्व्स एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट इंस्पायर्ड अस। सो वुड यू बी कंफर्टेबल इन शेयरिंग योर पेन पॉइंट्स इन लाइफ, योर पेन पॉइंट इन any one or स्टोरी? two of them. यार देखो एक बात बताता हूँ यार, तुम लोग ना सब कुछ वो पूछ रहे हो जो मैं ट्यूसडे को डालने वाला हूँ। मतलब एक डायलॉग बताता हूँ मैं जो मैंने ट्यूसडे वाली वीडियो में बोला है, तुम्हारे इंटर्न्स को भी सबको पता चले कि किस तरह का कंटेंट आ रहा है ट्यूसडे को, सो दैट दे गो एंड फॉलो सनी भैया ऑन इंस्टाग्राम एंड शेयर द वीडियो विद देयर फ्रेंड्स। यार जब धंधे की गाड़ी चलती है ना तो दोस्त पीछे रह जाते हैं, दोस्त कहते हैं दोस्त छूट जाते हैं, दिल टूट जाते हैं और परिवार वाले रूठ जाते हैं। तो दिस इज हाउ यू स्टार्ट अ बिजनेस। यार दोस्ती दिल परिवार सब छूट जाता है। एंड जो मैंने वीडियो बनाई है अभी ट्यूसडे की, ज्यादा बड़ी नहीं है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट आई एम कमिंग अप विद एंड कि क्या क्या स्ट्रगल्स थे यही सब बताने वाला हूँ। डेट, धमकियां, डिप्रेशन, सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं उसमें। एंड तुम लोगों को इस तरह से बात करो जो इंस्पायर कहते हैं इंस्पायरिंग हो फॉर योर इंटर्न्स, कि तुम लोग किसी और तरह के टॉपिक को छेड़ो, क्योंकि ये सारे टॉपिक मैं चाहता हूँ मैं अपने इंस्टाग्राम पे ट्यूसडे को छेड़ूं, because I am also under a responsibility to investors and other partners in the business, new business. Right. So, okay, so basically, if I ask you one thing, that sales is considered as not such a good profession, but अगर हम as we say अगर हम business करना चाहें या startup करना चाहें, हर जगह sales is one very important skill. So, according to you, what is sales and how important it is in every field? यार मेरे हिसाब से whatever I am today is just because of sales. अगर तुम 600 के 600 बच्चों से पूछोगे कि उन्हें योरसेल किसने बेचा, मैंने बेचा था यार। एंड खाली योरसेल को नहीं बेचना था, उसके बाद पूरी कंपनी को भी स्टैंडर्ड लिविंग को मैंने बेचा था। उसके बाद जो मेरे बाकी 4 पार्टनर्स थे उनको जो आइडिया था योरसेल का वो भी मैंने बेचा था। उसके बाद जितने एम्प्लॉयज हमने हायर करे कि वो हमारे साथ आ जाए जुड़ जाए, जितने इंटर्न्स हमने हायर करे, दैट इज ऑल्सो सेल्स। लाइफ में कुछ भी करोगे, लड़की पटाने से लेके शादी करने तक, या फिर कितना इंटर्नशिप करने से लेके मल्टी बिलियन डॉलर एग्जिट लेने तक, हर जगह सेल्स काम आएगी। और अगर तुम्हें सेल्स ही नहीं आती ना, नो मैटर कुछ भी कर लेना, कुछ भी काम नहीं आएगा लाइफ में। अगर अगर तुम्हें यही नहीं पता कि आईफोन बना के बेचना कैसे है, तो बना के करोगे क्या? अपने घर में थोड़ी रखोगे खाली। इन्वेंटर को भी सेल्समैन की जरूरत है, ऑपरेशंस वाले को भी सेल्समैन की जरूरत है, एक एंटरप्रेन्योर को भी सेल्स की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से बिजनेस इज हेयर, सेल्स इज हेयर। That's Very a true. great insight. So, सनी भैया आपने बहुत अच्छा स्टार्टअप किया एंड 95% ऑफ स्टार्टअप्स फेल। ओके, सो आई एम प्रीटी श्योर आपकी लाइफ में भी बहुत नेगेटिव पॉइंट्स होंगे जो आप ऑलरेडी कवर कर रहे हो। बट इफ स्टिल अ स्टूडेंट वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, बिकॉज हम सब में कीड़ा होता है स्टार्टअप करने का, सो वेयर शुड वी स्टार्ट फ्रॉम? स्टार्टअप इज द न्यू गिटार। Yeah, right. तो यार स्टार्टअप करने के लिए ना यार देखो, सबसे बेसिक सिंपल चीज बताता हूँ। ना तुम्हें पैसा चाहिए, ना तुम्हें आइडिया चाहिए, तुम्हें लोग चाहिए। सबसे पहले तो कहते ना, अब कंपनी इज मेड बाय पीपल, मनी, पीपल, आइडिया एंड मनी, इस ऑर्डर में।
सबसे पहले तो लोग होने चाहिए जो तुम्हारे साथ काम करने को जरूरी साथ है, चाहे वो इंटर्न्स हो, चाहे वो को फाउंडर्स हो, चाहे वो एम्प्लॉइज हो। दूसरा आइडिया, आइडिया कैसे आएगा? फाइंड अ प्रॉब्लम, सॉल्व इट एंड मोनेटाइज इट। यार मैं एक बात बताता हूँ, कैब वो उबर क्या करता है? पहले हम लोग तब भी ट्रैवल करते थे रिक्शा ऑटो में, यार हम भी जाते थे ऑटो में, 100 रुपए ऑटो के देते थे यहाँ से वहां जाने के। उबर ने क्या करा? उबर ने कहा फोन पे ऐप बुक कैब आएगी तुम्हारे पास। एक प्रॉब्लम ढूंढी, उसे सॉल्व किया, उसे मोनेटाइज कर दिया, ड्राइवर से कमीशन ले लेंगे। स्विगी ने क्या किया? खाना वाले रेस्टोरेंट वाले अपना ऑर्डर, वो जो थे डिलीवरी बॉयज खुद के रखते थे, उन्होंने बोला डिलीवरी बॉयज की इतनी जरूरत नहीं है, डिलीवरी बॉयज कॉमन रखेंगे हम। प्रॉब्लम ढूंढी, सॉल्व करा, डिलीवरी बॉयज कॉमन रखेंगे और डिलीवरी का चार्ज लेंगे सबसे, मोनेटाइज कर दिया। तो बिजनेस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, सॉल्विंग इट एंड मोनेटाइजिंग इट। टीम बनाओ, टीम कहां से बनेगी? जो तुम्हारे सोसाइटी में दोस्त है। इफ यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, जो तुम्हारे यहाँ सबसे बढ़िया काम कर रहा है वो तुम्हारे लिए काम करेगा। बेस्ट एग्जाम्पल योरसेल्फ, उसके बाद एग्जाम्पल हाउस इट। अगर तुम सोसाइटीज में नहीं हो, तुम कुछ और कर रहे हो लाइफ में, जो तुम्हारे सबसे क्लोज है, जिससे तुम दारू पीने के बाद भी बिजनेस की बातें करते हो, वो तुम्हारा पार्टनर बनेगा। एग्जाम्पल वी सेटल, ऑल दो प्रज्ञा दारू नहीं पीती, मुझे पता है, मेरे यहाँ रही है 1.5 साल, बट जो तुम्हारे साथ कहते ना अपने बेस्ट में भी और अपने वर्स्ट में भी बिजनेस की बातें कर रहा है, वो तुम्हारा पार्टनर बनेगा। आइडिया ढूंढने का मैंने तुम्हें तरीका बता दिया। अब पैसा चाहिए, थोड़ा पैसा दोस्तों से मांगो, क्राउड फंड करो। उसके बाद सनी भैया तो बैठे हैं, मैं हेल्प करता हूँ इन्वेस्टर्स दिलाने में और कितना वेंचर कैपिटल दिलाने में, नहीं तो अपना पैसा लगा दूंगा अगर तुम मुझे प्रॉफिट बांटोगे तो। देखो दोस्त, सिंपल सी बात है, धंधा चलना चाहिए और पैसा बटना चाहिए। ये नहीं है कि तुम्हारी हेल्प फ्री में करूंगा, हाँ भैया हूँ इसलिए हेल्प कर दूंगा, लेकिन अगर 100 रुपए कमाओगे तो मेरा हिस्सा दे के जाओगे। No, this is what I call the Garg instincts coming in. बनिए का दिमाग आ गया. बने Okay, so Sunny भैया, it's a normal human instinct that we all run towards security. Okay, and हाँ आपके इस पॉइंट टाइम पे आपके पास एक ऑप्शन था ISB का, बहुत सक्सेसफुल और सेफ ऑप्शन। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस इज इंडियाज बेस्ट बिजनेस स्कूल। आपका उसका एडमिट था एंड आपका दूसरा एक स्ट्रगलिंग स्टार्टअप था जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, बट डेली ऑपरेशनल वर्क है, डेट है, डिप्रेशन है। व्हाई डिड यू लीव द सेफ एंड सिक्योर साउंड ऑफ ISB एंड बेंड फॉरवर्ड विद योरसेल्फ? और यार क्या ये आपके अंदर आपके घर वालों ने कैसे उसको रिसीव Yeah. किया, क्या कैसे? ये बात सुनिए कि स्टार्टअप इज योर लाइक योर चाइल्ड। अब जितने भी बच्चे हैं, नॉट ऑफेंडिंग एनीबडी और नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीबडी, अगर तुम्हारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे अनाथ आश्रम में और दूसरा बच्चा पैदा कर लोगे? नहीं ना। वरना सेफ ऑप्शन तो यही है कि अगर तुम्हारे बच्चे में को मान लो फॉर एग्जांपल उसके पैर में कोई दिक्कत है, उसे छोड़ आओ अनाथालय और दूसरा बच्चा पैदा कर लो। तो स्टार्टअप को अगर बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो तो जेन्युइनली बच्चे की तरह ट्रीट करो ना। प्रॉब्लम थी योरसेल में, सिक्योरिटी नहीं थी, ISB में ज्यादा सिक्योरिटी थी, पर दोस्त योरसेल मेरा था, ISB मेरा नहीं था। हाँ, जिस दिन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को कहते ना मैं उसके बोर्ड पे हूँ, हाँ उस दिन जरूर जाऊंगा पढ़ने कि भाई मेरा है, मेरे को बेस्ट निकालना है यहाँ से। और अगर स्टार्टअप करना है तो सबसे पहले सिक्योरिटी छोड़नी पड़ेगी। जब तक आग नहीं लगती ना बॉडी में कि दुनिया जज कर रही है, दुनिया गलत बोल रही है, तब तक मेहनत भी नहीं होती। So how did your parents react to it? Because obviously parents का एक रहता है कि यार MBA कर ले, एक डिग्री ले ले, and then you'll settle at least somewhere. एंड आप तो गर्ग हो, आपके लिए तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्त आज भी सुबह मम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी अब तो ISB चला जा, अब तो फेमस हो गया। तो घर वाले रहेंगे, पर कहते ना तुम उनके भी बच्चे हो, तुम जैसे मर्जी हो, डिसेबल्ड हो, दिमाग से बेवकूफ हो, कहते ना पागल हो, पर वो तुम्हें तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ गुस्सा जरूर होंगे, मैं भी योरसेल से बहुत बार गुस्सा हुआ, पर साथ कभी नहीं छोड़ा। तो मैं अपने घर वालों के लिए योरसेल ही तो हूँ। ओके, सो सनी भैया, इन दिस एंटायर जर्नी, अगर आपको एक पर्सन, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना आपकी सक्सेस के पीछे आपका फेस तो है पर आपकी बैकबोन बहुत सारे लोग हैं। तो आप बहुत सारे लोग तो योरसेल की टीम, आपके इन्वेस्टर्स, मेंटर्स, स्टेक होल्डर्स हैं, बट हु इज दैट वन पर्सन हु वाज योर बैकबोन एंड ऑलवेज स्टूड बाय योर साइड एंड हु मेड यू हु यू आर टुडे? ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाली बात है? तुमने प्रेस हमें तो रिलीज में पता है, फोटो नहीं देखी? आप सबको बताओ। गूगल करना सनी गर्ग एंड लिखना, जो दूसरा नाम आएगा, शी इज द बैकबोन ऑफ द एंटायर सनी गर्ग योरसेल एंड व्हाटएवर आई एम कमिंग अप विद। इतना पीपल से यू आर द, मैंने तुम्हारे किसी इंटर्न का पोस्ट देखा था, किंग ऑफ स्टूडेंट हाउसिंग। दोस्त आई एम द क्वीन ऑफ स्टूडेंट हाउसिंग, शी इज द किंग ऑफ स्टूडेंट हाउसिंग।
तो ना शी इज द वन हु टेल्स मी व्हाट टू डू. अगर इस वेबिनार में भी मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसी ने बताया क्या बोल के आना है. So there was this बता. one question which came up that how did you make your first sale and how was the feeling once you did it? सेल योरशिप से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड? फर्स्ट योरसेल्फ सेल और फर्स्ट लाइव सेल, व्हाटएवर आप Whatever suits you. शेयर करना चाहो. ये देखो दोस्त, मैं इससे बेटर ना ये बताना चाहूंगा कि सेल्स करते कैसे हैं. मतलब that would be more relevant to your interns because you guys belong to the same industry. Sales is all about relevance, connection. तुम बेचो ही मत, समझ लो. तुम अगर मेरे को ये बोलते ना कि भैया आप हमारे वेबिनार में आ जाओ, आपको 500 लोग मिलेंगे, आप उनको बता सकते हो, आप अपना कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हो, मैं कहता भाई जा, आई हैव जी न्यूज CNBC इंटरव्यूज लाइंड अप नेक्स्ट वीक. तुमने मेरे से फोन करके क्या बोला, भैया यार आपने हमारी मदद करी थी शुरू करने में, भैया हम आपके टेनेंट्स हैं, क्या यार आप हमारे लिए इतना नहीं करोगे? तो वाली बात है ना, वी शेयर्ड अ कनेक्शन. यू सोल्ड मी आउट ऑन दिस वेबिनार दैट मोमेंट. यार दीज पीपल आर एसोसिएटेड विद मी, दीज पीपल आर डूइंग व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ. कहते ना कि इस तरह के लोगों की मदद करनी है मुझे. तो सेल्स में भी ऐसा है यार, यू डोंट हैव टू सेल द बेड ऑफ द पीजी, यू हैव टू सेल द कनेक्शन. एंड बहुत साफ इंटेंशन से, सामने वाले का काटना नहीं होता. ऑल्दो जब मैं सेल्स करता हूँ, जो मैं कुछ भी करता हूँ, लोग कहते हैं तू काट देता है लोगों का. दोस्त मेरी इंटेंशन कभी नहीं होती किसी का काटना. मेरी इंटेंशन हमेशा ही होती है लोगों से जुड़ना. तभी आज भी जितने पेरेंट्स योरशल के हैं, जितने बच्चे योरशल के हैं, तुमने देखी थी ना स्टोरी जब मैंने शेयर कर दी, इट गॉट वायरल, 560 शेयर्स. 560 लोगों ने उस स्टोरी को अपने आप बनाया था. इंस्टाग्राम पागल हो गया, ऑटोमेटिक शेयर स्टोरी डिलीट कर रहा था मेरे रीशेयर. बिकॉज वो लोगों के लिए मैं योरशल का ओनर नहीं था. उन लोगों के लिए आई एम सनी भैया, आई एम देयर सनी भैया. एंड आई वांट everybody to कहते ना create a connection like that before doing a sale. एक बार तुम्हारा कनेक्शन बन गया यार, अगर तुम बेड बेचने चलोगे सबसे पहले किसको बेचोगे? अपने बेस्ट फ्रेंड को ना. तो जो कस्टमर है पहले उसको बेस्ट फ्रेंड बना लो, उसके बाद बेच दो. Right, right. True. So there was this one more question that how do you build confidence? Because I'm very scared of starting something new. So are there any tips from your side? Also, guys, very quickly, write in your questions in the chat box so that we can दोस्त see. कोई दवाई नहीं आती जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. शीशे के सामने खड़े होकर बोलना पड़ता है आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट. एंड उसके बाद कहते ना साफ इंटेंशन से अपना बेस्ट देना होता है. अगर तुम किसी का गलत नहीं चाहोगे, अपना 100% हार्डवर्क दोगे, तो मैं नहीं कहता ऊपर भगवान बैठा है, पर कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो सब कुछ चला रही है. मेरे साथ लाइफ में बहुत बार गलत हुआ है, बहुत लोगों ने बेवकूफ बनाया, बट मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं करा. तभी आज भगवान बैठा है, तभी आज 500 लोग मुझे सुनने आए हैं. Right. So there was this another question which Chaitanya asked that I believe everyone has a startup idea, but the problem is the uniqueness of the idea. So how to come up with that? कौन था, क्या नाम था बच्चे का? Chaitanya. चैतन्य. दोस्त एक बात बताओ, इंडिया में पीजीज कब से खुल रहे हैं? जब से तू और मैं पैदा नहीं हुआ तब से पीजी खुल रहे हैं. और योरसेल में भी कुछ अलग नहीं था दोस्त. खाना देते थे, बेड देते थे, लॉन्ड्री देते थे और साफ सफाई देते थे. हाँ, उस आइडिया में अपनापन डालते थे और बेस्ट देते थे अपना, इसलिए योरसेल चल रहा था. तो इट इज नॉट अबाउट द आइडिया, इट इज अबाउट ना तुम अपना कितना अच्छा एफर्ट देते हो उस चीज में. As you said, पहले people आते हैं, फिर आइडिया आता है, फिर लोग मनी आता है, फिर मनी आता है, और फिर बहुत सारा मनी आता है जब तीनों मिल जाते हैं. So person asked that why did you sell yourself? If you want to share about that. यार why did I sell yourself? It was the time for my child to fly. अब मेरे से हैंडल नहीं हो रहा था. कहते ना एक टाइम आ जाता है जब बच्चों को हॉस्टल भेजना पड़ता है क्योंकि उनकी ग्रोथ चाहिए. तो I knew that Stanza Living can take care उनका better and I had a lot of debt. आज तुम्हारे सामने ज्ञान जरूर दे रहा हूँ क्योंकि इतनी जगह पब्लिश हो गया और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया. बट योरसेल में बहुत सारा डेट था यार, 4-4.5 करोड़ का डेट था. एंड देयर वाज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कहते ना गेटिंग वेरी सक्सेसफुल एंड कहते ना कॉल्ड एज द बिगेस्ट चूतिया ऑफ द स्टार्टअप वर्ल्ड. तो वो वाली चीज थी कि यार उस लाइन को क्रॉस करके कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करने की जरूरत थी. ऑल्दो मुझे 1 साल लग गया उस फीलिंग से रिकवर होने में. You didn't see me anywhere speaking in webinars or live for the last 1 year, not starting anything.
last 1 year was very depressed in my life. Everybody thought I earned a decent amount. I was spending on cars. I was going on trips. I was spending on 5-star hotels. But that was for me to get in my zone wherein I can start again. And it took fucking year. 15 नवंबर को डील साइन करी थी. आज कितना 15 सितंबर हो गया. नियरली 10 महीने लग गए मुझे उस चीज से रिकवर करने में. एंड आई एम ओवर योरसेल नाउ आई डोंट, कितना एक तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें कब अपने आइडिया से प्यार करके छोड़ना है और कब आगे बढ़ना है लाइफ में. So Sunny भैया, I have another question from my side. तो जैसे ही एक बच्चा कॉलेज में आता है, there are lot of things. एक यहाँ पे सोसाइटीज हैं, प्लेसमेंट्स हैं, लड़कियां हैं, घूमना है, पार्टी है, स्टार्टअप्स हैं. तो इस सब के बीच में where should one focus in college and make out his best? करियर के पीछे मत भागो, खुशी के पीछे भागो दोस्त. मतलब अगर मैं ये सोचता कि मैं इनएक्टिव ज्वाइन करूं, प्लेसमेंट सेल ज्वाइन करूं, मुझे खुशी नहीं मिल रही थी. मुझे करना ही नहीं है सोशल वर्क यार. पहले खुद पैसे कमाऊंगा, उसके बाद सोशल वर्क करूंगा. ऑल्दो सीखने का इनएक्टिव में इंडिया में बेस्ट है, पर मुझे नहीं करना था वो. मुझे नहीं खुशी मिल रही थी. मुझे नहीं लिखना सीवी में यार. आई डोंट वर्क फॉर सीवी. सबसे पहले तो कहते ना, मैंने सुना है शिवांश गर्ग सीवी फाड़ देता है. यंग इंजन वाला शिवांश मेरा जूनियर है, वो सीवी फाड़ देता है, सर्टिफिकेट फाड़. बिल्कुल सही करता है. फाड़ दो सारे सीवी, फाड़ दो सारे सर्टिफिकेट्स. अपने दिल की खुशी रखो. अगर तुम दिल से खुश हो ना तो सब बेस्ट होगा. डांस करना पसंद है, डांस करो, सिर्फ डांस ही करो. True. So there is this one question which says that you started at such a young age, but who was your inspiration? ये तो मुझे भी नहीं पता भैया. यार देखो, सबसे पहली इंस्पिरेशन इज माय डैड. मतलब आई बिलोंग टू अ टिपिकल बनिया बिजनेस फैमिली. तो कहते ना, जब मैं 6th क्लास में था वो मुझे दुकान पे बैठा के बोलते थे नोट गिन. तो वो कहते ना, एक तो बनिया ऊपर से बचपन से नोट गिन रहा है, तो जिंदगी में चाहिए ही नोट थे. Although thinking changed after coming to college, looking at a different perspective of life, लेकिन 6th से 12th तक तो नोट ही गिने, तो नोट ही चाहिए थे जिंदगी में. और ये समझ में आ गया था, जो पापा जिस तरह से बिजनेस कर रहे हैं उस तरह से, कहते ना, अपने पापा का बेस्ट ले लिया. ही इज अ पीपल्स पर्सन, ही इज वेरी नाइस. उनका बेस्ट निकाल लिया मैंने 6 साल में. उसके बाद आई केम टू कॉलेज. उसके बाद देखा कि किससे और क्या सीख सकते हो. रितेश अग्रवाल स्टार्टेड यंग, मेड अ $1 billion कंपनी. अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ भाई. उसने कौन सा, समझ रहे हो, बिफोर ओयो उसने कौन सा कुछ बहुत बड़ा कर रखा था लाइफ में. किया ना ट्राई, मैंने भी किया. उसी तरह हर आदमी से तुम्हारी लाइफ में जितने लोग हो, फ्रॉम अ पियन टू द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सबसे सीखो. जिसका जो बेस्ट लगे उसे अपनी पर्सनालिटी में डालो. तुम्हें लग रहा है कि मेरे में ये गलत है, मत लो. मेरे में ये अच्छा है ना, वो ले लो. रजत में ये अच्छा है, वो ले लो. प्रज्ञा में ये अच्छा है, बहुत ले लो. अब एक्साइटमेंट लेनी है, मेरी लो. पेशेंस लेनी है, प्रज्ञा की लो. मैनेजमेंट लेनी है, रजत की लो. सबसे सीखो यार. दिस इज लाइफ में जो ये 20 to 25 वाली एज है, 18 to 25 वाली, ये 7 साल, इतना सीख लो कि उसके बाद कुछ सीखने की जरूरत. ऑल दो लर्निंग कभी खत्म नहीं होगी. आई एम ऑल्सो लर्निंग एवरी डे. बट इतना सीख लो कि इनफ हो जाए कि हाँ भाई, अब लाइफ में सेटल हो जाएंगे इजीली. इतना आ गया कि अब राजमा चावल की 4 रेडी लगाऊंगा तब भी 2 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ. Yeah, so there's another question which comes up, that is the major mistake that you did in your startup. Everything was a mistake. जो भी मैं कर रहा था, मैं हर चीज, यार, it is not about the mistakes, it is about what you learn from the mistakes. Right. हर तरह हम लोगों ने अकाउंटिंग पे फोकस नहीं किया, लीगल पे फोकस नहीं किया, टेक पे फोकस नहीं किया, प्रोसेसेस बनाने पे फोकस नहीं किया. काफी लोगों ने मेरी टीम में कस्टमर प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं किया. किसी ने इंटर्न्स पे फोकस नहीं करा. तो उन सब चीजों से सीखा. एंड मैं एक बात बताऊं, मेरी गलतियों से नहीं सीख पाओगे. अपनी गलतियां खुद करनी पड़ेगी, उससे सीखोगे तुम लोग. और तुम्हारी टीम भी. करो ना गलतियां यार, क्या जा रहा है. मैं तो बेस्ट बता रहा हूँ, जो तुम्हारी 500 इंटर्न्स है, ऐसा रजत और प्रज्ञा लगा रहे ना, तुम 500 लोग इनके पीछे पड़ जाओ. एक्सपेरिमेंट करो जितने कर सकते हो. रजत परमिशन ना दे, मुझे मेल लिखो contact@sunnyBhaiya.com पे, मैं बोलूंगा इसको परमिशन देगा तुम्हें काम करने की. इसके पैसे जलाओ और सीखो, ताकि कल को अपना स्टार्टअप कर सको तो इजीली कर पाओ. रजत का पैसा जलाओ, प्रज्ञा का पैसा जलाओ. इंटर्नशिप करा रहे हैं तुमसे, सर्टिफिकेट, LOR और कम स्टाइपेंड के नाम पे. जलाओ इनका पैसा. नहीं जलाने दे रहे, मेरे को मेल लिखो, मैं फोन करूंगा इन्हें. और रजत, प्रज्ञा, मैं एक नया कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ, बिकॉज योरशेल वाज कंप्लीटली मेड आउट ऑफ इंटर्न्स. Right. तो मैं कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ, ISOPs, इंटर्न स्टॉक ऑप्शंस.
तुम्हारे इंटर्न्स को ना गूगल करेंगे, ESOP से कॉन्सेप्ट है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, जिसमें क्या होता है अगर कोई एम्प्लॉय 3 साल के लिए तुम्हारी कंपनी में काम करता है तो उसे कुछ % ऑफ इक्विटी मिलता है। तो हम जैसे लोग जो इंटर्न्स का फायदा उठाते हैं, मैं इस मार्केट को रेवोल्यूशनाइज करना चाहता हूँ कि भाई कोई इंटर्न फ्री में काम नहीं करेगा, या तो उसको पैसे मिलेंगे, नहीं तो अगर लंबा खेलेगा हमारे साथ, अच्छा काम करेगा, तो उसको ऑप्शंस मिलेंगे, ताकि कल को मेरे जैसा आदमी, तुम लोग या कोई और जब $multi-million एग्जिट ले, तो उस इंटर्न के घर में भी 2, 4, 5, 10 लाख रुपए जाने चाहिए। ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे इंटर्न तुम्हें पैसे के लिए या इक्विटी के लिए परेशान करे। जो ढंग का काम कर रहा है उसको अपने आप दो, और अगर कोई बढ़िया काम कर रहा है, 6 महीने साल इन्हें दिया और फिर भी इक्विटी नहीं दे रहे आईसॉप, तो मुझे बताना, मैं इनकी कंपनी बंद करा दूंगा। मेरे और इसलिए नहीं बोल रहा मैं बहुत बड़ा आदमी बंद करा दूंगा, मेरे को इनके लूप होल्स पता है। आई एम बिलोंग टू द सेम मार्केट। But on a very serious note, that's a really nice concept that you brought in. मैंने पहली बार सुना है concept. I guess yeah we have heard for the अरे first time. एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका ट्रेडमार्क भी मैं ही ले रहा हूँ। ऑल्दो कॉन्सेप्ट का नहीं ले सकता, नाम का ट्रेडमार्क मैं ले रहा हूँ, इंटर्न स्टॉक ऑप्शंस। That's nice. That's great. Giving back to the hands that build your Yeah. company, basically. और मुझे पता है यू गाइस रिस्पेक्ट योर इंटर्न्स, योर टीम। वो मैंने सुना है तुम्हारी टीम से, तुम्हारी तारीफ, मिला भी हूँ कुछ लोगों से, इसलिए इतने मजे ले रहा हूँ तुम लोगों के। Moving to the next question. So there's this question which says that how to be optimistic even in tough times. रिग्रेट, वो कहते हैं ना, रियलाइज वेयर यू केम फ्रॉम। Right. होने को तो कुछ बचता ही नहीं उसके बाद। अरे यार सिंपल सी बात है, कुछ नहीं हुआ तो राजमा चावल के अगर एक रेडी लगाओगे तुम, दिन की 100 प्लेट तो बेच लोगे। 50 रुपए की प्लेट बेचना 25 रुपए की पड़ती है खाने के बिजनेस में, तो 2500 रुपए डेली तुम्हें एक राजमा चावल की कार्ट लगा के खोल सकते हो। 75,000 रुपीज अ मंथ। फिर क्यों डरना? 4 रेडी लगा लेना, 3 लाख रुपए महीना कमाना। क्यों डरना दुनिया से? जब भी मेरे दिमाग में ये आता है कि आई विल फेल, अरे 4 राजमा चावल की रेडी तो कभी भी लगा लूंगा एक कुक को पकड़ के। That's true. So this is the type of confidence that everyone requires in life. Yeah. And Sunny, And we are those- honestly, we've realized that आप बहुत चीजें ना खराब हो रही होती थी, बट आपके कॉन्फिडेंस पे ही हम सब लगे रहते थे कि आपके कॉन्फिडेंस पे ही हम देखते थे कि कंपनी चल रही है, आपके कॉन्फिडेंस पे ही पूरी टीम लगी हुई है। सो दिस कॉन्फिडेंस इज अमेजिंग दैट यू हैव। यार पता है, एक बात बताता हूँ, ये कॉन्फिडेंस हो ना हो पर ये दिखाना बहुत जरूरी है। बिकॉज देखो यार, फटती मेरी भी है, डर, वो कहते हैं ना माउंटेन ड्यू में, डर सबको लगता है। लेकिन अगर इफ यू आर लीडिंग, एंड इवन इफ यू आर नॉट लीडिंग द कंपनी, you are at least accountable or responsible to your mom, dad, sisters, brothers, friends, family. And if you are leading a company, you are responsible to n number of people. You don't have to show them that you are failing, and you don't have to make them realize कि उन्होंने तुम पे बेट लगा के गलत किया। जैसे सट्टा लगता है ना क्रिकेट में, ये वैसा ही है। अगर वो तुम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उन्होंने सट्टा लगाया हुआ है तुम पे, और तुम्हें ही लगेगा कि तुम हार रहे हो, तो भाई उनका क्या होगा? तुम तो चैन की नींद सो जाओगे गर्लफ्रेंड से बात करके, वो क्या करेंगे बेचारे? There is just another question which said that how did the name Your Shell came in? यार I was very much inspired by Your Story, श्रद्धा शर्मा। Your Story is a magazine, it is an online publication जहाँ पे मैं इस बार publish भी हूँ। Exactly. I am reading it for the last 7-8 years I guess। तो योर स्टोरी बहुत पसंद था मुझे, और मेरे को ना नाम ढूंढ रहा था मैं प्ले स्टोर पे, तो एक नाम आया शेल, घर से रिलेटेड नाम था शेल, और ऊपर से योर स्टोरी का नोटिफिकेशन आया, तो नोटिफिकेशन में था योर स्टोरी, ऐप खुली हुई थी शेल, तो योर शेल, दिस इज हाउ योर शेल केम इनटू मी। Oh, that's great. नोटिफिकेशन में था योर स्टोरी, ऐप खुली हुई थी शेल। Just a minute, Bia. We're asking the next question. So there's a question. Do you think there is an advantage of belonging to a bigger city as compared to a smaller city? Like people in Delhi have a lot of opportunities, unlike a smaller town. तो छोटे बड़े शहर की बात है यहाँ पर. Do you think it makes a difference? तुम्हें कौन रोक रहा है दिल्ली आने से भाई? 1000 रुपए की टिकट आती है, 1000 रुपए की टिकट आती है, 10,000 रुपए का फ्लैट आता है। तुम्हें किसने रोका दिल्ली आने से यार? मेरे जो 4 पार्टनर्स थे, चारों नॉन दिल्लीइट्स हैं। और एक बात बताता हूँ सच, टियर 2 टियर 3 सिटीज में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है।
यहाँ पे स्विगी चल रहा है, वहां पे स्विगी नहीं चल रहा, यहाँ पे बिग बास्केट चल रहा है, वहां पे बिग बास्केट नहीं चल रहा। जितनी छोटी जगह उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। कहते हैं ना, यूएस से सारे बिजनेस मॉडल कॉपी करके दिल्ली में ला रहे हैं, तुम दिल्ली से कॉपी करके टीयर 3 सिटीज में ले जाओ दोस्त। और लग रहा है नहीं है अपॉर्चुनिटी टीयर 3 सिटीज में, तो 1000 रुपए की ट्रेन टिकट पकड़ो। मैं मेरे से बुक करा लेना, मैं बुक कर दूंगा अगर उसके भी पैसे नहीं है तो। आ जाओ मेरे पास, फ्लैट या पीजी हमसे ले लेना। फ्लैट ऑफिस हाउस विजिट से ले लेना। Right. So there is this question which said that since you mentioned in the beginning that you have been watching a lot of TV series which inspired you, so which were those TV series? They want to know. सबसे पहले तो मनी हाइस्ट। आई वांट टू बी द नेक्स्ट प्रोफेसर। रॉबरी नहीं करनी, बिजनेस करना है। दूसरी महाभारत, मैंने पूरी महाभारत देखी थी बैठ के। हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप्स, जितना मर्जी ट्रस्ट कर लो, सब धोखा देंगे, फिर तुम्हें अर्जुन बन के लड़ना पड़ेगा। और बहुत सारी सीरीज है, हर सीरीज कुछ ना कुछ दिखाती है। ब्रीद हो गई, जितनी भी अमेजोन और नेटफ्लिक्स की सीरीज है हिंदी वाली, इंग्लिश मुझे ज्यादा समझ में नहीं आती, सूट्स और मनी हाइस्ट वगैरह छोड़ के, ये सारी सीरीज अच्छी हैं यार। कोई भी बिजनेस रिलेटेड सीरीज देखो, नॉन बिजनेस रिलेटेड कोई भी सीरीज देखो, तो वो ऐसी देखो जिसमें राइटर ने दिमाग लगाया हुआ है, सब अच्छी हैं। Right. Next question. You don't have to be like Tokyo, you have to be like Professor. एक ने मिला था, how do you? Right. So there's this question which came up that does working in big corporates help in building your skills like communication, networking, etc.? No experience in this field, although it does, but I won't comment because मेरे पास कोई experience नहीं है corporate का, ना मैंने कभी किया, ना मैं कभी करने वाला। अपन राजमा चावल की रेडी लगा के ज्यादा खुश हैं corporate से। So what keeps you moving forward in life? Like what is your reason or a passion which you want? What keeps you motivated? मैं आपको जब भी देखता हूँ हमेशा एनर्जी में होते हो, हमेशा आइडिया से फुल होते हो। What keeps you going? This is something which I also want to know. यार I want to कितना make a dent to the universe। जब मैं मरूं तो दुनिया याद रखे कि हाँ ये मर गया। ऐसे ना मरूं कि बस मर गया और मर गया, 4 लोग जानने वाले हैं। चाहे वो स्टूडेंट हाउसिंग से आए, चाहे वो रियल एस्टेट से आए, चाहे वो लोगों से आए। मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिस दिन मैं मरूं तो लोग कहें कि यार अच्छा आदमी था यार, मेरी मदद करी थी इसने। और एक आदमी ना बोले, ज्यादा से ज्यादा आदमी बोले दिस इज माय लाइफ पर्पस। Again, one more question, Sunny Bhaiya. So I have seen that you are an amazing person while creating relations. हर कोई आपसे connected होता है, हर कोई आपको सनी भैया की तरह treat करता है. And this is a superpower because not lot of people know this. And this is one of the things which took you in life forward. तो आप कैसे relations maintain करते हो और कैसे हम सब भी सीख सकते हैं उससे? दोस्त मैं एक बात बोलता हूँ, जो तुम्हारे 10,000 लिंक्डइन फॉलोअर्स हैं और जो तुम्हारे 10,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, वो तुम्हारे नेटवर्क नहीं है। ना तुम्हारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं 1000, वो तुम्हारा नेटवर्क नहीं है। जिन लोगों के लिए लाइफ में तुमने कुछ किया है, 10 लोग या जो 5 लोगों ने लाइफ में तुम्हारे लिए कुछ किया है, दैट इज योर नेटवर्क, दैट इज योर नेटवर्क। कहते हैं ना नेटवर्क इज योर नेटवर्क। कोई ये नहीं एक्सप्लेन करता कि लिंक्डइन का नेटवर्क नहीं है। You have to give value to the people associated with you. Then only they will add value to your personality or your life. And if somebody has added value to your life, you have to give it back. Right. So there's another question which turned up, that is, how did you fund your startup, and what exactly are the options available if the capital is not available with our parents? Fund your startups. Funding is like sponsorship यार। प्रपोजल बनाओ, ईमेल आईडीज निकालो, लिंक्डइन पे लोगों को परेशान कर करके पिच करो। नहीं करते तो यार छोटा स्टार्ट करो ना। कौन कह रहा है बहुत बड़ा स्टार्ट करना है? 20 कस्टमर्स के लिए पैसा तो खुद जुगाड़ सकते हो, पर नहीं कर सकते तो भाई मत करो। एंटरप्रेन्योरशिप तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने भी पैसा खुद जुगाड़ा है ना हाउ डिड वी सेटल के लिए। वेबसाइट बनवाई, लोगो बनवाया, टीम को पैसे दे रहे हो। फंडिंग तो अभी मिली है। तुम में से किसको मिली? हाउसइट को मिली है ना अभी फंडिंग। तुम वो पैसा तो अभी जुगाड़ा है, पहले तो पैसा नहीं था, घर से लगा रहे थे ना। तू मेरे से पूछ रहा मैंने आईएसबी को छोड़ा, तूने भी तो बेन छोड़ा दोस्त। ये ना entrepreneurship is jumping from a mountain and building a helicopter while coming down. आपकी यही बातें दिल जीत लेती है। अब मेरे को समझ में आ रहा है क्यों रिलेशन बनते हैं आपसे। यार किसी का गलत मत चाहो यार। इट इज ऑल, मैं तो अगर कभी बुक लिखूंगा लाइफ में तो मैं लिखूंगा द बुक गेम ऑफ इंटेंशंस।
You don't have to play any game. This is the game. Right. It is all about your intention. I remember you telling me every time this thing that intentions over skills. Skills तो पता नहीं किसके पास है. Skills तो यार पता है हर आदमी के पास skills है. लाइफ में हर आदमी को भगवान ने कुछ ना कुछ सिखा के भेजा है. कहते ना अगर तुम्हें मेरा टैलेंट दिख रहा है मुझे तुम्हारा भी टैलेंट दिख रहा है. पर गेम टैलेंट की है ही नहीं. गेम इंटेंशंस की है कि कौन साफ दिल से तुम्हारे एक पर्पस में एक मिशन में जुड़ रहा है. इन 500 को मत जोड़ना. इनमें से जो 10 लोग दिल से जुड़ेंगे ना तुम्हारे मिशन में उनको जोड़ना. Very true, very true. There's this question that says that just a second. हाँ. No. So this will be covered in Tuesdays. Yeah, most of it will be covered in Tuesday's thing. Easy. What all did you? This he has already told. So this is again a question कि lot of people don't know face this problem कि हम properly communicate नहीं कर सकते, हमें English properly नहीं आती, हमें publicly बोलना नहीं आता. So this thing is the question कि अगर हमें ये नहीं आता तो how should we go forward with that? How should we improve on that कितनी aspect? देर हो गई सेशन स्टार्ट हुए 45 मिनट हो गए. मैंने मुश्किल से 20 वर्ड इंग्लिश के बोले होंगे. इंग्लिश मुझे भी नहीं आती दोस्त. इट इज अबाउट डूइंग समथिंग गुड इन लाइफ. उस पर मेहनत करो. इंग्लिश अपने आप आ जाएगी. नहीं आएगी तो तुम हिंदी बोलोगे लोग सुनेंगे. नहीं पहनने आते अच्छे कपड़े, नॉर्मल कपड़े पहन के अच्छा काम करो. लोग तुम्हारे को हल्के कपड़ों में मिलेंगे. पब्लिकली नहीं बोलना आता, ट्राई करो, सीख जाओगे. नहीं तो आई एम नॉट अ पब्लिक स्पीकर काइंड ऑफ अ पर्सन. जो इस चीज पे ट्रेनिंग है इसके लिए टोस्ट मास्टर ज्वाइन करो. ऐसे क्लब्स हैं वो ज्वाइन करो. इंग्लिश स्पीकिंग क्लब ज्वाइन करो. बट मेरा मानना है जरूरत नहीं होती दोस्त. मैं वही आदमी हूँ जो याद करके जाता था स्टेज पर 12th क्लास में भूल जाता था. और आज जो मर्जी बुलवा लो. बिकॉज लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है जब तुम कुछ अच्छा काम करते हो. पहले काम करने पे फोकस करो. पब्लिक स्पीकिंग तो अपने आप आ जाएगी. जब जरूरत होगी ना, भगवान जब लिखा होगा भगवान ने तुम्हारी लाइफ में कि इंग्लिश बोलना सिखाना है, पब्लिक स्पीकिंग सिखानी है, अपने आप सिखा देगा. एवरी द लाइफ इज लाइक अ गेम. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5. अगर तुम्हारे लेवल 5 पे इंग्लिश सीखना लिखा हुआ है तुम्हारे प्लेयर को, तो तुम लेवल 1 पे नहीं सीख सकते. वो कहेगा फंक्शन नॉट फाउंड. Right. So there is this question that said that I always kneel down in front of my parents because जब भी मैं उनके opposite decision के opposite कुछ करता हूँ तो वो मुझे ऐसा feel कराते हैं कि मैंने बहुत गलत कर दिया लाइफ में. So how do you overcome that thing? How do you fight your parents against your parents? Who the support system? लास्ट में पेरेंट्स तुम्हारे हैं. जो मर्जी करोगे तुम्हारे साथ ही खड़े होंगे. बस सुसाइड मत करना, दारू मत पीना, सिगरेट मत पीना और गलत काम मत करना. अगर कुछ अच्छा करियर में करना चाहोगे, शुरू में लड़ेंगे, बाद में तुम्हारे साथ ही खड़े होंगे. मेरे पेरेंट्स भी खड़े हैं. योरशल के शुरू में नहीं थे. 1 साल बाद जब उन्हें रियलाइज हो गया कि इसको फितूर चढ़ गया इस चीज का. कहते हैं ना लव मैरिज के लिए घर वाले इनिशियली नहीं मानते, लेकिन जब तुम लड़की के पीछे पागल हो जाओ तो घर वालों को मानना पड़ता है. दोस्ती तो करियर की बात है. हाँ, उन्हें डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना. लाइफ में कोई साथ आए ना आए, सनी भैया साथ आए ना आए, रजत भैया साथ आए ना आए, तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे. तुम्हारे भाई बहन हमेशा तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे. तो उनको डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना. Right. So there's this one question from my side that while building a core team or while finding a co-founder, both ways, what are the characteristics or what are the things you should keep in mind, especially while building a core team? विजन. सबसे पहले तो विजन कि तुम पैसों के पीछे भाग रहे हो, वो काम के पीछे भाग रहे हैं, मत बनना. तुम काम के पीछे भाग रहे हो, वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मत बनना. तुम्हारी विजन मिलनी चाहिए कि हमें चेंज लाना है, या हमें इतने नोट छापने हैं, या हमें इतने लोगों का बेवकूफ बनाना है. नो मैटर व्हाट इज द विजन. जो विजन है वो सबकी सेम होनी चाहिए. उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है. बस विजन होनी चाहिए सेम और इंटेंशन सबकी साफ होनी चाहिए. उसके अलावा सब कुछ हो जाता है. ओके. स्किल सब सीख जाते हैं यार. मुझे भी नहीं आता था जूम चलाना. कोरोना आया, जूम पे वीडियो कॉल करनी आ गई ना. मुझे तो अभी भी लाइव देखना नहीं आ रहा कहाँ पे कौन कमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है. 2 फोन 1 लैपटॉप रख के बैठा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा. पर सुन रहे हैं लोग मेरी बात. Right. So one I guess last thing, No, so not relevant question. So एक important question है सनी भैया
कि हाउ डू यू बिल्ड द कल्चर इन योर स्टार्टअप, बिकॉज हर स्टार्टअप में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप कैसे लोगों को ट्रीट कर रहे हो, कैसे पूरा एनवायरनमेंट सेटअप है, एंड which also reflects in your working style and actually leads to the success of the startup. So how did you establish the culture in yourself and how can one establish that? हर आदमी को इम्पोर्टेंस दो। जितने लोग हैं तुम्हारी कंपनी में, पियोन से लेके इंटर्न तक, सबको इम्पोर्टेंस दो। सबको फील कराओ कंपनी तुम्हारी है, एंड कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। कंपनी इज नॉट अबाउट इक्विटी, कंपनी इज नॉट अबाउट प्रॉफिट, कंपनी इज अबाउट द पीपल विद इन। एंड पीपल विद इन का मतलब ये नहीं है जो उस कंपनी में काम करते हैं सिर्फ, उसके वेंडर्स, उसके इन्वेस्टर्स, उसके सप्लायर्स, ए टू जेड, एवरी सिंगल बडी। सबकी हेल्प करो, सबको अकाउंटेबिलिटी दो, सबको रिस्पॉन्सिबल रहो, सबकी इज्जत करो, सबकी मदद करो। अगर किसी को तुम्हारी टीम में एमबीए की कोचिंग में हेल्प चाहिए तो बिजनेस के साथ साथ वो भी मदद करो उसकी। जब तुम उसे अपनापन दोगे तभी वो तुम्हें अपनापन वापसी देगा। वरना जितने लोग तुम्हारे लिए इंटर्नशिप कर रहे हैं सब अच्छे घरों से हैं, कोई भी 1000-2000 रुपए के लिए इंटर्नशिप करने नहीं आता, सिर्फ अपनापन मांगने आते हैं। सिर्फ कहते ना, अपनापन, नेटवर्क, सर्टिफिकेट मांगने आते हैं, और जिसमें हम लोगों का कुछ नहीं जाता एंटरप्रेन्योर्स का। और अगर हम इन्हें अपना मानेंगे तभी ये अपना मानेंगे हमारे ब्रांड को। Right. और सेम विद कस्टमर्स, बेवकूफ बनाने का मत सोचो। तुम पीजी दिला रहे हो ना, पूरे साल रिस्पॉन्सिबल रहो उसके लिए। Right. देखना अगले साल 10 लोग आएंगे उसके थ्रू। So और Sunny बाकी bhaiya, continue. I'm really sorry. नहीं, कोई नहीं, बोल दो। So Sunny bhaiya, we were asking, आपका वीडियो ऑफ हो गया है? हाँ. एक So मिनट फोन आ रहा है। so we are asking कि हमने आपका बहुत टाइम ले लिया। अगर हम में से किसी को आपको रीच आउट करना है, if we want to know about you or want to know your story about what's going on Tuesday, मैं बहुत excited हूँ उसके लिए। So how can we get to know and how can we reach out to you? यार देखो, मेरे को यार इस टाइम पे फोन नंबर्स तो सारे, मतलब मेरे को कुछ नहीं पता कि किस पे कौन सा कॉल आ रहा है, किस पे थोड़ा कौन सा मैसेज आ रहा है। मुझे 2-4-5 दिन टाइम लगेगा। आई विल रिप्लाई टू एवरी सिंगल बडी हु मेल्स मी और टेक्स्ट मी ओवर फोन, और कहते ना ओवर इंस्टाग्राम। सबसे पहले तो मैं सबसे ज्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम पे हूँ, सनी भैया विद डबल ए, SUNNYBHAIYAA। भरत टाइप हो रहा है, टाइप कर दे। कर दिया मैंने। भैया भैया में डबल ए। ओके, I'll again do that. दिस इज इंस्टाग्राम। लिंक्डइन पे इट इज linkedin.com/in/SUNNYGRG। लिंक डाल दे लिंक्डइन का। ईमेल आईडी है contact@sunnyBhaiya.com। We'll do one thing. We'll share the email ID and in the groups. in the groups. तुम्हारे ये पास सब है ना आपको सब reach out कुछ? करना है। दोस्त हाँ, देखो, जिसको मदद चाहिए अपने करियर से रिलेटेड, रजत और प्रज्ञा करे ना करे, सनी भैया जरूर करेंगे। बाकी मुझे पता है ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, तभी इनके लिए इतनी जल्दी मैं मान भी गया। मेरे पास इस टाइम 15 इनवाइट आ चुके हैं डीयू की अलग अलग सोसाइटी से। आई हैव एग्रीड टू बोथ ऑफ देम बिकॉज दे आर रियली नाइस बाय हार्ट। एंड क्या पता इनको फंड भी मैं कर दूं अब अगला राउंड। अभी मैंने इन दोनों को कंबाइन करने के लिए इसलिए बोला था कि तुम दोनों साथ में एक सेशन कराओ मिलके और ये प्रोग्राम कराओ। अगर ये लोग अच्छा काम कर रहे होंगे तो सन्नी भैया विल सपोर्ट देम, बिकॉज ड्यू के योरसेल के बाद कोई अच्छे स्टार्टअप्स हैं, तो दैट इज हाउस इट एंड रीसेटल। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर गिविंग वन आवर टू मी। तुम 500 लोगों ने दिया यार। आई स्टिल डोंट बिलीव कि मुझे सुनने 500 लोग आए। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू so रजत, much, थैंक यू Bhaiya. प्रज्ञा। Bye-bye. Thank you. Bye.